हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। कैसे हो सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो ग्रेट। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द टॉपिक सेल डिवीजन। ठीक है, आज उसका लेक्चर 3 है। पहले वाले 2 लेक्चर भी आप लोग देख लेना अगर नहीं देखा हुआ तो। ठीक है, एंड आज एक सरप्राइज भी रहेगा आप लोगों के लिए। क्या सरप्राइज रहेगा वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो देखते रहना क्योंकि बीच में ही मैं बताऊंगी कि सरप्राइज क्या रहेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। All right, all of you can take out your notebook so that you can note down the important points and important questions. Okay, so चलो शुरू करते हैं फिर। और हाँ, आज का जो वीडियो है थोड़ा लंबा होने वाला है। इट विल बी वेरी लॉन्ग बिकॉज टॉपिक ही लेंदी है and I want to complete the complete topic in one single video only. Okay, so please do watch the complete video to understand the topic. जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, क्या लिखा है? विच प्रोसेस हेल्प्स इन सेल डिवीजन ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे कौन सा सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है? कौन सा होता है? That is the meiosis process. Okay, so meiosis is the process which is happening in during this reproduction. So it is the process which occurs in the germ cells या फिर sex cells भी जिसको हम बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या जरूरत थी दो अलग अलग प्रोसेस की? माइटोसिस एंड मायोसिस दोनों की डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस की क्या जरूरत थी? व्हाट वाज द नेसेसरी, लाइक देयर आर टू प्रोसेसेस, व्हाई माइटोसिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर अस, लाइक कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे भी माइटोसिस हो जाए? तो ये क्वेश्चन अराइज होता है, तो आप लोग सोचो और तब तक एक छोटा सा वीडियो भी देखो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। That we've already. Have you ever thought of cloning yourself or regenerating some of your organs? But being humans, we can't just divide into two to make an extra copy of ourselves or regenerate any of our parts. If we were some other type of organism, let's say a starfish or a cactus, then cloning or regenerating would have been possible. Starfish show a startling property of regeneration. They can simply regrow their lost limbs to the complete length. On the other hand, some cacti can clone themselves with the help of fragments which drop off their branches. The fragments can take root and develop into new genetically identical cacti. These regenerating and cloning strategies are both employed by mitosis that we've already seen in depth in the previous video. As we've studied, mitosis helps in asexual reproduction in certain organisms, like in the case of this cactus plant. But in contrast to this, humans, along with many other plants and animals, produce new individuals exclusively through a process called sexual reproduction. The complicated yet necessary process of sexual reproduction is the key to species propagation in higher animals. And how is the process made possible? All begins with a unique process of cell division. It's called meiosis. The other type of cell division in contrast to mitosis. And what exactly is meiosis about? Let's dive deeper to understand this beautiful concept in detail. Let's begin with the definition of meiosis first. Meiosis is an exceptional phenomenon which produces 4 daughter cells, each with half the number of chromosomes compared to the single parent cell. You heard me right. The process gives us 4 new cells, unlike in mitosis that produces only 2 new cells. And what could be the reason for this? Why do we need 4 daughter cells, and that too with half the number of chromosomes? Just think about it. Sexual reproduction involves both the parents, or 2 cells, one from each parent to be precise. Now, if there are 2 cells fusing, it's obvious that the number of chromosomes should be half in both the cells, so that the fused cell will carry the normal chromosome number. Now let's take it the other way. We know that the human chromosome number is 46. So, if there are 2 human cells fusing to give us an embryo, then the newly fused cell will carry 46 plus 46, 92 chromosomes. This is simply not possible in nature. So in order to maintain the chromosome number of species, it is necessary that the 2 fusing cells contain half, that is, 23 chromosomes in number. So in order to maintain the number of chromosomes in the zygote, the chromosome number in the fusing cells need to be halved.
Also, the chances of fertilization increase with more number of cells. Hence, instead of 2, making 4 cells is preferable in nature. This is the reason why meiosis gives us 4 daughter cells with half the number of chromosomes. Now, since the process yields us cells with half the chromosome number, it's also called as reductional division. Now that we've got introduced to the process, let's glance at the definition once more, but this time with respect to the chromosome number. Meiosis is a process that gives rise to a haploid cell from the diploid one. Now you must be wondering, what is a haploid cell and a diploid cell? Well, haploid cell is the one that has a single set of chromosomes, while diploid cell has 2 sets of chromosomes. That means a diploid cell has chromosomes in double doses, while a haploid cell has chromosomes in a single dose. So the cells in our body with 46 chromosomes are all diploid, while the reproductive cells are haploid with 23 chromosomes. All right, so that's a nice video. I hope it's good for your understanding. तो मैंने ये छोटे छोटे वीडियो इसलिए इनकॉर्पोरेट किए हैं ताकि आप लोगों को मज़ा भी आए, बोर भी ना हो, और थोड़ा एनिमेशंस भी आप लोग देख सको और अच्छे से समझ में भी आ जाए टॉपिक्स। ठीक है, तो मायोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। क्यों बोलते हैं अभी बताऊंगी, क्योंकि इसमें हो जाता है क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मायोसिस होता कहाँ पे है? ये होता है जर्म सेल्स में। ठीक है, कहाँ पे होता है? जर्म सेल्स, या फिर सेक्स सेल्स, या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। सो इट हैपेंस इन जर्म सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स। सो स्पेशली यहीं पे होता है। ठीक है, माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स, जो कि सारे बॉडी के सेल्स है। बाकी सिर्फ मायोसिस होता है जर्म सेल्स में। ओके, अब इसमें होता क्या? हैप्लॉइड गैमीट्स फॉर्म ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज द गैमीटोजेनेसिस प्रोसेस, आर ड्यू टू द मायोसिस। ये इसी में क्यों होता है, ये स्पेशली क्यों बनाया गया है? क्योंकि अगर आप लोगों को याद है, माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम सेम रहता है। राइट, जो हमको डॉटर सेल्स मिले हमको, वो क्या है? आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल्स। राइट, डॉटर cells were identical to the parent cells, so daughter cells were, you can say, the clone of the parent cells in case of mitosis. Whereas in case of meiosis, the chromosome number reduced to half in the daughter cells. ठीक है, अब ये क्यों जरूरी है? हाफ क्यों करना है क्रोमोसोम नंबर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों करना है हाफ? देखो, तो हमारे सेल्स में कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। राइट, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं सोमैटिक सेल्स में। अगर हमारे जर्म सेल्स, मतलब जो हमारे गैमीट्स है, उसमें भी अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो कि अगर वहां पे भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे गैमीट्स में। गैमीट्स क्या क्या? स्पर्म एंड ओवम। राइट, स्पर्म एंड ओवम में अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे तो क्या होगा? तो जाइगोट जो बनेगा उसमें हो जाएगा 92। नहीं, राइट, होगा कि नहीं होगा? which is impossible. Okay, which is not possible for a species. So for to survive a species, for a survival of the species, जो क्रोमोसोम नंबर है उसका इक्वल रहना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगर आप खुद सोचो, अगर एक जीन में भी थोड़ा सा म्यूटेशन होके चेंज हो जाता है तो ही कितने सारे डिजीजेस हो जाते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स कॉज करता है वो। राइट, तो यहाँ पे तो पूरे क्रोमोसोम्स की बात हो रही है। अगर क्रोमोसोम ही चेंज हो जाएगा तो वो स्पीशीज ही पूरा चेंज हो जाएगा, वो कुछ और स्पीशीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होमोसेपियंस के केस में 23 पेयर्स है। ऑल राइट, एंड अदर ऑर्गेनिजम्स के केस में डिफरेंट नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, and it should be equal in the zygote also. So to maintain the number of chromosome, meiosis is happening. So meiosis में क्या हो जाता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो गए। यहाँ पे अगर 2n थे तो यहाँ पे आके क्या हो गए? n हो गए। और फिर यहाँ पे फिर से एक और नंबर ऑफ डिवीजन होगा जिसमें 4 डॉटर सेल्स हमको मिलेंगे, जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो यू कैन सी कि ये पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, अब डॉटर सेल्स में कितने रह गए? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। I hope it is clear to all of you.
Okay, now meiosis is also responsible for the maintaining of the conservation of like chromosome number, जो कि हमने अभी डिस्कस किया. ठीक है, सारे स्पीशीज में, सारे जितने भी स्पीशीज में जहाँ पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, वहां पे मायोसिस होता है टू मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कि मायोसिस की वजह से ही जेनेटिक वेरिएशन होता है. ऑलराइट, so you can see that we do not exactly look like our parents, right? We have some changes as compared to our parents. So why this there are so many changes? Because of the meiosis. यहाँ पे होता है recombination, crossing over. ओके, जिसकी वजह से आता है जेनेटिक वेरिएशन. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. ऑलराइट, इसको भी याद रखना, दोनों पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है. जबकि माइटोसिस में ऐसा नहीं होता. ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है, डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल. तो अब ये इतना लंबा प्रोसेस है. ऑफ कोर्स, जैसे अगर आप लोगों को पढ़ाई करनी है ना, बहुत लंबा कोर्स है, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो आप क्या करोगे, उसको सेक्शंस में डिवाइड कर लोगे, है ना, पार्ट वाइज पार्ट पार्ट करोगे. ऐसा तो नहीं कि एक दिन में बैठ के पूरी बुक रट ली और हो जाएगा. ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, राइट? तो आप उसको सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हो कि चलो आज 2 चैप्टर कर लेंगे, कल 2 चैप्टर कर लेंगे, परसों 2 चैप्टर कर लेंगे, ऐसे ऐसे करके आप डिवाइड करते हो, राइट? तो सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है सेल डिवीजन के टाइम पे. मायोसिस 1 और मायोसिस 2 होता है. सो देयर आर 2 सेल डिवीजन, बिकॉज काम ही इतना ज्यादा है ना. आप खुद देखो कितना सारा काम है, क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करना है, बट वेरिएशंस भी क्रिएट करना है, दोनों ही चाहिए, है ना. तो इसलिए यहाँ पे 2 स्टेप्स में होता है मायोसिस. क्लियर है? डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ओनली इन द एस फेज बिफोर मायोसिस 1. तो हमने देखा था कि सबसे पहले आता है इंटरफेस, जो कि है एग्जाम की प्रिपरेशन. उसके बाद आता है एम फेज, विच इज द एग्जामिनेशन, राइट? तो यहाँ पे एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो तो एक ही बार होता है. ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन इंटरफेस में ही हो जाता है. इंटरफेस के बाद आता है मायोसिस 1, फिर आता है इंटरकाइनेसिस, फिर आता है मायोसिस 2. ठीक है, तो ये सीक्वेंस रहता है. नेक्स्ट, अब यहाँ पे होता है रिकॉम्बिनेशन, जो कि मैंने आप लोगों को बताया, और 4 हमको हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलते हैं. ठीक है, माइटोसिस में हमको 2 मिलते हैं, मायोसिस में 4 मिलते हैं, 4 डॉटर सेल्स हमको मिलते हैं. So let's move on now. Let's talk about the meiosis 1 फर्स्ट, उसके बाद हम मायोसिस 2 करेंगे. ठीक है, तो मायोसिस 1 में फिर से वही फेजेस आ जाते हैं जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड कीलोफेज. ठीक है, पी मैट, याद रखना, पी मैट 4 फेजेस होते हैं. बट यहाँ पे प्रोफेज इज काफी लेंदी, बहुत लंबा होता है प्रोफेज. ठीक है, प्रोफेज में ही 5 सब फेजेस आ जाते हैं. ठीक है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे, जानेंगे. एक स्टोरी मैं बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें याद रखने के लिए है. स्टोरी को ध्यान से सुनना, तो उससे आप इन चीजों को रिलेट करना, तो आपके लिए याद रखने में बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, स्टोरी को सुनने से पहले ईयरफोन जरूर लगा लेना. ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो जैसे होता है ना, अगर एक लड़का है, लड़की है, दोनों को अगर एक दूसरे से प्यार हो जाए, तो क्या होगा, पहले तो अट्रैक्शन होगा. अट्रैक्शन होने के बाद फिर वो क्या करेंगे, थोड़ा पास पास बैठेंगे ताकि वो बातचीत कर सके. राइट, लव एट फर्स्ट साइट अगर हो जाए तो पहले वो क्या करेंगे, पास आएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या हो रहा है, मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ये मेल क्रोमोसोम है. ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडेंस हो रहे हैं. So leptotene is the stage where you can see the condensation of the chromosome. Alright, वो पास आ रहे हैं, coil कर रहे हैं, पास आ रहे हैं. ठीक है, now what will happen? Now they love each other. So what one chromosome can do? One chromosome can put his head on the lap of the girl. ठीक है, तो एक के लैप में, मतलब ये कब हो रहा है, ये लेप्टोटीन स्टेज में, लैप में उसने अपना सर रख दिया, ऐसे समझ लो. ठीक है, तो ये लेप्टोटीन में हो रहा है, क्या पास आ रहे हैं. ठीक है, ना ये अब और पास आ जाता है तो ये हक करेंगे एक दूसरे को, राइट? तो अब हक करेंगे तो क्या होगा, इस एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इमोशन एक्सचेंज होते हैं, राइट? तो यहाँ पे देखो, इस द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग टुगेदर, ये देखो ये एकदम ऐसे पास पास आ गए बिल्कुल. ठीक है, ऐसे ऐसे जैसे दो लोग ऐसे खड़े होते हैं ना हक करके, वैसे ही. तो दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड एज साइनैप्सिस. तो आप ऐसे समझ लो कि साइनैप्सिस इज इक्वल टू क्या होता है, हगिंग. ठीक है, हग करना.
ऑलराइट। तो हगिंग ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस, आप ऐसे समझ लो। तो जो प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन है दैट इज कॉल्ड एज द साइनेप्सिस। अब इनके बीच में जो जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, राइट, द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन दीज टू क्रोमोसोम्स, दैट इज द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो साइनेप्सिस के बीच में एक ये स्ट्रक्चर बन रहा है, यू कैन सी ओवर हियर। ये देखो, ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको, डॉटेड व्हाइट व्हाइट। सो दीज आर द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन विच इज हैपनिंग इन बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ओके, नाउ अब ये जब दोनों क्रोमोसोम्स ऐसे पास पास आ गए हैं, तो इनको जब हम दूर से कोई देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे है ना, जैसे पास पास खड़े होते दो लोग एक साथ ऐसे चिपके हुए से, तो ये भी ऐसे ही दिखते हैं दूर से। तो इसलिए हम इनको एक नया नामकरण देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द बाइवेलेंट। All right, by two. So when the chromosomes are coming together and forming the synapses association, that is called as bivalent. The pair chromosomes are referred to as bivalent. इसको tetrad भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 ये ऐसे structures दिखते हैं, so that's why it's called as tetrads. I hope it is clear to you. So this stage is called as the zygote stage. Zygote में क्या हो रहा है? Hugging हो रहा है, that is the synapses, and bond formation हो रहा है, that is the synaptonymal complex. बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद क्या होगा? दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब क्या होता है, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। ठीक है, हाथ पकड़ लिया, इसको इससे रिलेट कर सकते हैं, दैट इज द क्रॉसिंग ओवर इज हैपनिंग। ठीक है, ऐसे देखो, हाथ पकड़ रखा है इन्होंने, क्रोमोसोम्स ने, एक क्रोमोसोम ने दूसरे क्रोमोसोम का हाथ पकड़ लिया, राइट। लव स्टोरी है ना, तो लव स्टोरी में हाथ पकड़ना चलता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। ऑलराइट, रिकॉम्बिनेशन। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, हाथ पकड़ने वाला जो स्ट्रक्चर बना है, दैट इज कॉल्ड एज द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, और जो प्रोसेस हो रहा है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर। क्लियर है? नाउ अब ऑब्वियसली हाथ पकड़ा है तो यहाँ पे चेंज, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस हो रहे हैं, है ना, बहुत प्यार बढ़ रहा है, राइट। तो लव स्टोरी आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल्स, द जीन्स एक्सचेंज आर हैपनिंग इन बिटवीन दीज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्लियर है? ना कभी कभार क्या होता है, हमारे दोस्त लोग कहीं पे लव स्टोरी होती है तो दोस्त लोग भी उसमें एज अ मीडिएटर काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी एक मीडिएटर है, इस प्रोसेस को तेज करने के लिए, फास्ट करने के लिए, देयर इज अ एंजाइम व्हिच इज एक्टिंग एज अ मीडिएटर व्हिच इज कॉल्ड एज द recombinase enzyme. Okay, now this complete thing is happening in the stage Pachytene. All right, this is the Pachytene stage. Now, moving forward to the next stage, that is called as the Diplotin stage. Now, यहाँ पे तो ये लोग हक किए हुए थे और इन्होंने हाथ पकड़ा था, बट अब ये पूरी जिंदगी हक करके तो नहीं रह सकते ना, इनको और भी काम करने हैं, है ना। तो इसलिए अब ये अब ये थोड़े सेपरेट हो जाते हैं। In the process of getting the separation, so the synaptonymal complex जो बना था, जो bond formation हुआ था, अब उसको टूटना पड़ेगा, है ना। ये एक, आप समझ लो, एक ग्लू की तरह काम कर रहा है, वो चिपकाया था, अब उसको टूटना है तो उसको हटाना पड़ेगा। तो synaptonymal complex जो है वो डिसॉल्व होता है, तब ये जाके थोड़े सेपरेट हो गए, देखो अलग अलग हो गए। यहाँ पे पहले चिपके हुए थे, एक के ऊपर एक था, अब यहाँ पे ये अलग हो गए, बट हाथ नहीं छोड़ा, अभी भी हाथ पकड़े हुए हैं। ठीक है, जिंदगी भर का साथ है, तो हाथ पकड़े रहेंगे सातों जन्मों तक। ओके, तो अब ये देखो हाथ पकड़े हुए, बट तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कायस्माटा। ठीक है, दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कायस्माटा। सो दिस इज हैपनिंग इन द डिप्लोटीन स्टेज। नाउ अब यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि जैसे oocytes होते हैं ना, जैसे ह्यूमन बींग्स में जो प्राइमरी oocytes होते हैं इन फीमेल, इट रिमेन्स इन दिस स्टेज अंटिल द फीमेल रीचेस द प्यूबर्टी। मतलब मेयोसिस वन भी कंप्लीट नहीं होता है, जब फीमेल प्यूबर्टी रीच करती है तब ये और ज्यादा इसके बाद वाले स्टेजेस आएंगे। तब तक ये इसी स्टेज में रहता है, जो सेल रहता है, उसके बाद ये स्टेज हो आएगा, फिर ओव्यूलेशन होगा, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टेज इज द डायकाइनेसिस स्टेज। नाउ इसमें क्या होता है, ये जो हाथ पकड़ा हुआ था ना, तो ये अब थोड़ा थोड़ा नीचे, इट विल मूव टुवर्ड्स द टर्मिनल ऑफ दिस chromosome, so that is called as terminalization of the chiasmata. So the chiasmata is moving towards the terminal,
ठीक है, धीरे धीरे इस तरफ आ जाएगा। नाउ द क्रोमोसोम कंडेंसेशन वाज कंप्लीटेड, पास तो ऑलरेडी आ गए थे, है ना। मायोटिक स्पिंडल जो है अब वो असेंबल होना चालू हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज जो है वो क्या है, मेटाफेज है। ऑलराइट, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, all of these disappears. ओके, दिस वाज द प्रोफेज वन। तो यहीं पे प्रोफेज वन खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेज आता है मेटाफेज। मेटाफेज जो है ये ऑलमोस्ट सेम है जैसे माइटोसिस में हमने किया था। क्या होता है, मिड लाइन में आता है एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मिड लाइन, आई टोल्ड यू दैट। तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम्स जो है वो कहाँ आ जाएंगे, मिड लाइन में आ जाएंगे। देखो हाथ अभी भी पकड़ा हुआ है, मैंने कहा था ना हाथ नहीं छोड़ेंगे ये अभी भी यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर जो कायस्मेटा बना था उसी फॉर्म में है। ठीक है, अभी भी इनका हाथ छोड़ने का टाइम नहीं आया। अब यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। one is the kinetochore fiber, another is the polar fiber. The kinetochore fibers are attaching to the kinetochore, the polar fiber attaching to the like other parts of the chromosome. ठीक है, यहाँ पे जो cohesin is the protein which is binding to the chromosomes. All right, cohesin प्रोटीन जो है वो एक तरह से यू कैन से द कोहेसिव नेचर होता है, स्टिकी नेचर होता है, तो वो बाइंड कर जाता है। ओके, सो दिस इज हैपनिंग इन द मेटाफेज एंड ऑल ऑफ द bivalent chromosomes are aligning themselves at the equatorial plate or the metaphase plate. नाउ इसके बाद आता है एनाफेज, राइट। तो एनाफेज में क्या होगा, फिर से जो स्पिंडल फाइबर्स है वो शॉर्टनिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे, छोटे होने लगेंगे। कौन से वाले, काइनेटोकोर फाइबर्स वाले। यू कैन सी ओवर हियर जो काइनेटोकोर फाइबर है वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, छोटे होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो क्रोमोसोम्स है इट्स पुलिंग अपार्ट। ठीक है, दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे और जो पोलर फाइबर है वो स्ट्रेच हो जाते हैं, वो बाद में जाके टूटते हैं, जिसकी वजह से जो सेल का साइज है वो इलोंगेट हो जाता है। यहाँ पे राउंड था सेल का साइज, यहाँ पे ये इलोंगेटेड हो गया। क्लियर है। अब ये देखो, अब इन्होंने हाथ तो छोड़ा, बट हाथ छोड़ा बट फिर भी अपने इमोशंस नहीं छोड़े। यू कैन सी, राइट। तो जीन्स का जो एक्सचेंज हुआ था वो वी कैन सी दैट ओवर हियर इन दिस स्टेज, राइट। सो जीन्स, जो जीन्स थे इसके थोड़े इसमें आ गए, इस वाले के थोड़े इसमें आ गए, है ना। ग्रीन के ब्लू में, ब्लू के ग्रीन में चले गए। दैट वाज द रिकॉम्बिनेशन और इसी से होता है वेरिएशन। क्लियर है। सो दिस इज द एनाफेज। सो हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर ये टेट्राड था, राइट। ये अलग होता है काइनेटिक और माइक्रोट्यूब्यूल्स, यहाँ से पुल्ड अपार्ट हुआ एनाफेज वन में। ऑलराइट, ये दोनों ये क्रोमोसोम्स थे। अब यहाँ पे देखो मेटाफेज टू में क्या हो जाएगा, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है, जो डॉटर क्रोमोसोम्स है वो अलग हो रहे होंगे। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे मियोसिस टू में। सो देखो यहाँ पे फिर से वन मोर वन मोर डायग्राम। यहाँ के आप देख सकते हो जो जीन्स है वो कैसे सेग्रीगेट हुए, राइट। यहाँ पे पहले कैपिटल सी था, स्मॉल सी स्मॉल सी। अब ये देखो यहाँ पे जब ये क्रॉसिंग ओवर हुआ, राइट, कायस्माटा बना, तो ये जो है ये कैपिटल सी स्मॉल सी हो गया और कैपिटल सी स्मॉल सी हो गया। ऑलराइट, तो ये हमने एक जीन का किया है, बट देयर आर thousands of genes, not only one genes, and this is happening in so many genes, right। बहुत सारे जीन्स में होता है और इसी की वजह से जेनेटिक वेरिएशन डेवलप होता है चाइल्ड में। ठीक है, एंड इसीलिए हम अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सेम नहीं दिखते, राइट। चलो नेक्स्ट स्टेज आता है टीलोफेज वन एंड उसके बाद आएगा साइटोकाइनेसिस। तो टीलोफेज वन में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स ऑफ कोर्स वो फेड अवे हो जाएंगे, सारे क्रोमोसोम्स अब पोल की तरफ मूव कर चुके हैं, राइट। तो अब once the chromosome arise from the chromatin, sister chromatids continues to be linked, ये sister chromatids जो है वो linked है। ओके, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप ये अब रीअपियर हो जाएंगे। इसके अलावा जो ईआर, गोल्गी एपरेटस ये सब भी रीअपियर हो जाएंगे। ओके, and this is followed by the cytokinesis and dyad of haploid cells are formed. तो meiosis 1 के बाद we get two haploid cells. I hope it is clear. So here you can see the complete summary of the meiosis 1. All of you can note down this table also. ये आपके notes के लिए भी काम में आएगा। तो प्रोफेज 1 में क्या हुआ, chromosomes condense, nuclear envelope they disappears, homologous chromosomes bind firmly together along their length forming a tetrad, chiasmata बना, crossing over हुआ, है ना, स्पिंडल फाइबर्स जो है री इमर्ज हो गए। फिर मेटाफेज में क्या हुआ, homologous chromosomes randomly they assemble in the metaphase plate, they align themselves in the equatorial plate,
एनाफेज में क्या होता है, स्पिंडल माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो है, स्पिंडल फाइबर्स, दे शॉर्टन अप एंड द होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर पुल्ड अपार्ट टुवर्ड्स द पोल्स। टेलोफेज में क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स आर अराइविंग एट द पोल्स, और यहाँ पे डीकंडेंसेशन हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप ER, nucleolus, they will reappear again, and after that there will be the cytokinesis process. All right, so यहाँ तक था आपका meiosis 1। चलो एक सरप्राइज की जो मैं बात कर रही थी, देयर इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर यू, उसको अब डिस्क्लोज कर देते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द लिंक फॉर टेस्ट। यू कैन अटेम्प्ट द सेल्फ टेस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक। आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो उस और ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो वहाँ पे इट्स फ्री, कंप्लीटली फ्री, देयर इज नो चार्जेस फॉर द टेस्ट, इट्स जस्ट यू कैन एनालाइज योरसेल्फ कि आप लोग कितना कर पा रहे हो, ठीक है। तो you can go to the link, click on the link after revising the topic thoroughly and attempt the test. Okay, that was a surprise for you. All right, okay, चलो अब आगे बढ़ते हैं। That was the completion of meiosis 1. Now क्या होगा next? meiosis 2 होगा। बट मायोसिस 2 एकदम से नहीं हो जाता, इसके बीच में एक छोटा सा ब्रेक होता है, एंड दैट ब्रेक इज कॉल्ड एज द इंटरकाइनेसिस। ऑलराइट, इट्स अ वेरी शॉर्ट लिव्ड, a transient stage, you can say it is a transition stage। इस transition stage में होता क्या है, the necessary proteins are synthesized, all right, the proteins which are necessary for the meiosis to it, those are going to be synthesized, no DNA replication is happening over here, और कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, और बहुत छोटा सा स्टेज होता है, ठीक है। नाउ कम्स टू द मायोसिस 2। अब देखो हमको ये क्रोमोसोम ऐसे मिल चुके थे क्रॉसिंग ओवर फॉर्म में, यू कैन सी इट इज अ रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम वी ऑलरेडी हैड फ्रॉम आवर मायोसिस 1। मायोसिस 2 इज मोर लाइक माइटोसिस। अगर आप लोगों को माइटोसिस अच्छे से क्लियर है ना, तो ये तो ऐसे चुटकी में हो जाएगा, ठीक है। मायोसिस 2 बिल्कुल वैसा ही है। तो बट इसमें चार हमको हैप्लॉइड सेल्स मिल रहे हैं, क्योंकि दो से हमको दो से डिवाइड होके चार बन रहा है, सीधी सी बात है। डिप्लॉइड नहीं मिल रहा हमको, हैप्लॉइड मिल रहा है, ये एक डिफरेंस है। तो आगे बढ़ते हैं। मायोसिस 2 में प्रोफेस शॉर्ट ही होता है, देयर आर नो सब फेजेस इन द प्रोफेस, ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही होगा, ठीक है। Prophase, the interkinesis is followed by prophase 2, which is simpler than the prophase 1, of course, because it do not have the subphases. Again, prophase में क्या होता है, जितने भी हमने prophase देखा उस सब में एक चीज कॉमन थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन disappears, न्यूक्लियोलस disappears, सारी चीजें मतलब disappear हो जाती है बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज प्रोफेस का आप याद रखना कॉमन है। ओके, क्रोमोसोम्स बिगिंस टू कॉम्पैक्ट, कंडेंसेशन। तो प्रोफेज का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पी फॉर प्रोफेज, पी फॉर पैकिंग। तो क्रोम क्या होता है, इसमें पैकिंग होता है क्रोमोसोम का, है ना। घूमने जाने से पहले पैकिंग करते हैं ना हम अपने कपड़ों की, तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स की पैकिंग होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो पैकिंग नहीं होंगे तो ये दूसरे सेल्स में कैसे जाएंगे, है ना। तो सारे ही प्रोफेज में आप देखो ये दोनों चीज तो कॉमन है, पैकिंग विच इज द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। क्लियर है। मेटाफेज में भी फिर से वही बात हो जाएगी, मिड लाइन वाली बात, ठीक है। एवरी क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर, दे कम टू द मिड लाइन, एंड द क्रोमैटिड्स अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स, ठीक है, एट द काइनेटोकोर्स, ठीक है। बिल्कुल सेम वही वाली बात आ जाएगी, सारे जितने भी क्रोमोसोम्स है अब वो आ जाएंगे कहाँ पे, मिड लाइन में आ जाएंगे। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So here in this diagram also you can see that कि क्या हो रहा है, प्रोफेज 2 में न्यू स्पिंडल फॉर्म्स अराउंड द क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये मेटाफेज 2 है, सो क्रोमोसोम्स आर लाइनिंग अप एट द इक्वेटर। ऑलराइट, सेम चीज अगेन एनाफेज में रिपीट होगा, द स्पिंडल फाइबर्स आर गोइंग टू पुल द क्रोमोसोम्स अपार्ट, ठीक है। जो क्रोमैटिड्स है उसको एकदम पुल कर लेंगे, इट्स लाइक इलास्टिक, है ना। एक इलास्टिक को खींचोगे, एक छोर से छोड़ोगे तो दूसरी तरफ चला जाएगा, राइट। तो उसी की तरह ये इसको खींच लेगा पूरी तरह से। एनाफेज 2 में क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर एंड टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, यू नो दे आर गोइंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। अब ये टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, अब देखो कंपेयर करो इसको अगर एनाफेज 2 से, एनाफेज 1 से, यू कैन सी इन द एनाफेज 1 ये क्रोमोसोम्स के फॉर्म में थे, अब ये क्या हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड्स के फॉर्म में आ गए। क्लियर है। So microtubules of the spindle fiber, they become shorten up
All right, and the sister chromatids we will call it as a daughter chromosomes now. अब इसको हम daughter chromosomes बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इसके बाद तो 4 सेल होने ही वाले हैं ना, हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। फिर आता है टीलोफेज। टीलोफेज में फिर से सारी चीजें रीअपियर हो जाएंगी, ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ईआर, गोल्गी एपरेटस, एवरीथिंग दे विल रीअपियर अगेन। स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड्स आर नाउ कंसिडर्ड एज द क्रोमोसोम्स, अब इसको हम क्रोमोसोम बोलेंगे। After the telophase, next stage is the cytokinesis 2. So again, there will be a development of the furrow, cleavage furrow, from where the cells are going to divide, cytoplasms are going to divide. इसका इधर डिवाइड हो जाएगा, इसका इधर डिवाइड हो जाएगा, तो हमको 2 सेल से कितने मिल गए? 4 डॉटर सेल्स मिल गए। वी गेट द 4 हैप्लॉइड daughter cells which are now called as gametes. Okay, what are the gametes? Sperm in case of male and ovum in case of female. Clear? So we get the gametes. तो ओवम हमको कब मिल रहा है? ओवम में देखो जो प्राइमरी oocyte था, दैट वाज ऑलरेडी लाइक इन द डाइकाइनेसिस फेज, है ना। हमने अभी यहाँ पे पढ़ा किस स्टेज में था वो, डिप्लोटीन के स्टेज में, ठीक है। जब एक फीमेल पैदा होती है तो उसमें जो oocyte है वो डिप्लोटीन के स्टेज में रहता है। व्हेन शी रीचेस द प्यूबर्टी, आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स डिवीजन, और ये पूरा डिवीजन होता है कहाँ तक? ये साइटोकाइनेस्टिक 2 तक। क्लियर है? उसके बाद जाके ओवम बनता है, फिर वो नेचुरल प्रोसेस जो रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे वो चालू हो जाता है उसमें, ठीक है। So that's the meiosis 2. You can see, let's have a quick summary over here. All right, prophase 2 में क्या हुआ? Sister chromatids they condense, a nuclear spindle begins to form. All right, metaphase 2, sister chromatids they line up at the midline, the metaphase plate. Anaphase में again the sister chromatids they pulled apart. All right, and telophase में they reaches the pole, they decondense, nuclear membrane, nucleolus they reappear. All right, and after that the cytokinesis happens. So let's see a very small video again for your better understanding. ठीक है? Have you ever wondered why children do not look exactly like their parents, or why some siblings look so different from each other? The answer lies in the process of meiosis, which generates the gametes for reproduction. Meiosis is the process by which haploid cells are produced from a diploid cell. For this to occur, the chromosomes must be correctly sorted and distributed in a manner to create genetically unique cells with half the number of chromosomes as the original cell. Meiosis occurs in special cells called germ cells within the gonads of males and females. For the successful reduction in the number of chromosomes to occur in the new haploid daughter cells, 2 rounds of divisions are necessary. These divisions are termed meiosis I and meiosis II. Although the processes of mitosis and meiosis look similar, there are a few major differences. One obvious difference is that mitosis results in 2 diploid daughter cells, and meiosis results in 4 haploid cells. As in mitosis, meiosis begins after a cell has successfully completed the G1, S, and G2 stages of interphase. During the S phase of interphase, the DNA is replicated, producing 2 copies of each chromosome called sister chromatids. The paired centrioles in the cytoplasm duplicate and begin extending microtubules that will form the meiotic spindle. Sister chromatids remain attached at the centromere and condense as the cell enters prophase I of meiosis. Up to this point, the cell looks similar to mitosis, but 2 events occur in meiosis that do not occur in mitosis and lead to genetic diversity. The first event occurs during prophase I, when homologous pairs of sister chromatids lie side by side in a process called synapsis, forming a tetrad or bivalent. The homologous chromosomes share similar but not necessarily identical genes. Once this structure is formed, the second event, called crossing over, can occur. During crossing over, a physical exchange between chromosome segments of non-sister chromatids occurs, increasing genetic diversity. Prophase I concludes with the fragmentation of the nuclear envelope as the duplicated centriole pairs move to opposite poles of the cell. As they move, the centrioles extend spindle fibers forming the meiotic spindle.
In prometaphase 1, with the paired centrioles in place, the meiotic spindle is fully formed. The sister chromatids attach to the spindle fibers by their kinetochores. Here, another key difference between mitosis and meiosis occurs. Because of synapsis and crossing over in meiosis, homologous chromosomes remain aligned, so that a pair of sister chromatids is attached to only one pole by the kinetochore microtubules. In mitosis, each sister chromatid is attached to a spindle fiber. The fibers originate from opposite poles. During metaphase 1, bivalents randomly align along the metaphase plate. Due to independent assortment, this alignment is random and adds to genetic diversity. In anaphase 1, the homologous chromosomes separate and move toward opposite poles. Meiosis 1 ends with telophase 1, when the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis separates the cytoplasmic material, and the two daughter cells are separated by a cleavage furrow. Since the final product of meiosis 1 is two haploid cells, meiosis 2 begins without the chromosomes going through another round of DNA replication. Centrioles again duplicate and begin moving to opposite poles of each cell. In prophase 2, the sister chromatids condense while the spindle starts to form as the nuclear envelope disappears. In prometaphase 2, the sister chromatids attach to the spindle by kinetochore microtubules, with sister chromatids attached to opposite poles. The spindle aligns the sister chromatids along the metaphase plate during metaphase 2. During anaphase 2, sister chromatids separate and individual chromosomes move toward the poles. The entire process ends with telophase 2, as the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis occurs, and cleavage furrows separate the two daughter cells into 4 haploid daughter cells. The haploid daughter cells will specialize into gametes, either sperm or egg. These fuse in fertilization to form a zygote, which will grow into a child. The child receives half its chromosomes from its mother and half from its father. Because men and women produce millions of gametes, and the selection of gametes in fertilization is random, this contributes to genetic diversity. This explains why a child isn't identical to either parent. But why aren't siblings identical? The diversity comes from several sources. In prophase 1, non-sister chromatids can exchange DNA through crossing over, increasing the genetic diversity of individual chromatids. In addition to crossing over, in metaphase 1, the pairs of homologous chromosomes align independently along the metaphase plate and sort independently into the daughter cells. This process, called independent assortment, produces 4 genetically distinct haploid gametes. As the total number of chromosomes increases in an organism, the number of genetically distinct gametes increases by 2 to the nth power. This means an organism with n equals 3 can produce 8 unique gametes. For humans where n equals 23, there are 2 to the 23rd power unique gametes formed, or over 1 million different possible combinations. The combination of independent assortment, crossing over, and the random pairing of gametes during sexual reproduction increases genetic diversity and explains why a child will not look exactly like his or her parents or siblings. All right, so now you know that why we do not exactly look like our parents or we do not exactly look like our siblings also, right? क्यों? क्योंकि there are so many possibilities. तो कितने number of gametes बन सकते हैं? 2 to the power 23 नंबर ऑफ गैमेट्स बन सकते हैं, वो भी एक एक फीमेल, या तो मेल में या फिर फीमेल में, राइट? तो ऐसे फीमेल में भी 2 टू द पावर 23 नंबर ऑफ गैमेट्स बनेंगे, और उसमें उन गैमेट्स में से भी कौन से गैमेट्स आके फर्टिलाइजेशन होगा उनका। तो देयर आर यार लाइक देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, जिसकी वजह से हम लोग सिमिलर नहीं होते, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज आल्सो देयर। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसकी वजह से ये वेरिएशंस होते हैं। एंड दिस वेरिएशंस लीड्स टू द इवोल्यूशन प्रोसेस। ओके, इजंट इट सो इंटरेस्टिंग? तो हम लोग फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं मायोसिस को। मायोसिस में होते हैं 2 स्टेप्स, मायोसिस 1 एंड मायोसिस 2। सो बेसिकली देयर आर 2 न्यूक्लियर डिवीजन व्हिच इज हैपनिंग। ओके, मायोसिस 1 में प्रोफेज हैज further 5 substages, okay? Lactotine, zygotine, pachytene,
डिप्लोटीन एंड द डाइकाइनेसिस। ऑलराइट, फिर आता है मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन एंड द साइटोकाइनेसिस। तो जब मायोसिस वन के एंड में हमको मिल जाते हैं दो हैप्लॉइड cells. Okay, now meiosis 2 is starting from the haploid cells only. तो यहाँ पे हमको इसके एंड में मिल जाते चार haploid cells. ठीक है, so I hope the topic is clear to you. If you like this video, please do share it with your friends and hit the like button. Do attempt the test. I will give the link of the test also in the description box. ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगी, उससे जरूर अटेम्प्ट करना, खुद को असेस करना। ठीक है, एंड अगर जितने भी मार्क्स आएंगे आपके उसको कमेंट में कमेंट्स करना, लिखना। ठीक है, कितने किसके कैसे नंबर आ रहे हैं। ऑल राइट, सो that is it for today's video, all of you. So take care, have a nice day all of you. And आप लोग कौन सा टॉपिक नेक्स्ट पढ़ना चाहते हो वो भी मेरे को बताना। ठीक है, so if you want any specific topic that I will definitely create for you. All right, so take care, have a nice day all of you, bye bye.